Hello students, I have recorded two more important question based on random variable. Okay, so this question is the random variable x has probability distribution. See, already the probability are found already here. So what we have to find, that is find the value of k. तो रिमाइंड हम क्या करते थे कि एक टेबल ड्रॉ करते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर. ओके, सो x and p of x, mind it, if x equal to 0 then p of x is k. मैं कहाँ से ला रहा हूँ, यहीं से ला रहा हूँ. if x equal to 0 then p of x is k. if x equal to 1 then this is 2k. if this is 2, 3k. otherwise मतलब any other value के लिए, any other value के लिए this is 0. so we know sum of the probability distribution, sum of the probability is equal to 1. already we know. so what we know, p of 0 plus p of 1, p of 2 is equal to 1. so this equal to k plus 2k, 3k equal to 1. this equal to 6 of k, 6 of k equal to 1. so k equal to 1 by 6. So first part of this question asked what is the value of k, that is 1 by 6. What is second part? Mind it. Find, first of all find p x less than 2. What does it mean? x less than means 2 means p x equal to maybe 0, maybe 1, maybe 0 and maybe 1. so p of p x equal to 0, this equal to k and this equal to 2k. we have to find the value of this. This is 3k and k already found here. This equal to 1 by 6. so answer is 1 by 2. okay, first part. second part, p less than or equal to 2. less than or equal to 2 means क्या है ना, p it may be p of 0, p of 1 प्लस p of 2, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 2 भी है और 2 से लेस भी है. जस्ट पुट द वैल्यू. p of 0 इज k, p of 1 2k, p of 2 this equal to 3k. so this equal to 6 and 7k, sorry 5 and 6k. so this is 6 into 1 by 6 equal to 1. okay, so okay, third one is p, this is x, x greater equal to 2. so greater equal to 2 means this is simply p of 2, क्योंकि हमारे टेबल में 2 से ग्रेटर और कुछ है नहीं. इसका मतलब p of 2 दिस इक्वल टू थ्राइस ऑफ k एंड 3 into 1 by 6 this equal to 1 by 2. I hope you can understand this question. Come to the next question, that will be very important. See the next question. 4 defective balls are accidentally mixed with 6 good ones. Mind it. Some bulb, electric bulb are there.
इनमें से 4 बल्ब्स जो डिफेक्टिव है, नहीं जलते, एंड 6 गुड वंस, ध्यान रखना। सो नंबर ऑफ बल्ब इज 10 एमंग दीज डिफेक्टिव बल्ब आपका कितना है 4, एंड द गुड वंस आपका 6। क्या क्वेश्चन है, दोनों वापस में मिक्स हो रखा है। तो अगर मिक्स हो रहा है तो बल्ब को हम पता करना मुश्किल है, which one is good and which one is defective. So अब come to the question, find the probability distribution. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करेंगे, तो क्या फाइंड करेंगे, रैंडम वेरिएबल क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of number of defective bulb. This number word is important. Number of defective bulb, ध्यान रखना, 4 bulb are drawn at random from this. इसका मतलब 4 बॉल आपने उस बैग से पिक किया है। तो जब 4 बॉल पिक किया है तो यहाँ पर कहता है कि 4 बॉल जो पिक किया है उसमें से गुड वंस भी हो सकता है, उसमें डिफेक्टिव भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x आ गया कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। अच्छा, डिफेक्टिव बल्ब फिर कितने हो सकते हैं, अगर आपने 4 बल्ब उसमें से पिक किया है तो डिफेक्टिव कितना हो सकता है, या तो बिल्कुल ना हो, 1 डिफेक्टिव हो, 2 भी डिफेक्टिव हो सकता है, 3 भी डिफेक्टिव हो सकता है, और चारों की चारों भी डिफेक्टिव हो सकता है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ध्यान रखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड P of x equal to 0. What does it mean? Probability of x equal to 0. x क्या है, डिफेक्टिव बल्ब। तो इसका मतलब डिफेक्टिव बल्ब कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब 0 मीन्स क्या है कि ऑल आर गुड्स, नो डिफेक्टिव बल्ब। इसका मीन्स हो गया नो डिफेक्टिव बल्ब। ऐसे हो सकता है 4 बॉल आपने पिक किया है तो नो डिफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, लेकिन आपने कितने बॉल पिक किया, 4 बॉल पिक किया, यहाँ पर कॉम्बिनेशन थ्योरी आ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको सामने दे रहा हूँ। अगर 4 बॉल पिक किया है तो टोटल 10 में से आपने, ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस, 10 में से 4 पिक किया है, और आपने यहाँ फेवरेबल क्या है कि नॉन डिफेक्टिव बॉल मीन्स क्या है, गुड वंस। तो 6 में से आपने कितना पिक किया है ना, 4 पिक किया है। अच्छा, कॉम्बिनेशन को आपने तब फैक्टोरियल के थ्रू कर सकते हो, शॉर्टकट टेक्निक भी है, आपको मैंने 11th में बताया था, आपको याद होगा नहीं होगा, देखो ध्यान रखना। शॉर्टकट टेक्निक क्या है, 6C4। तो क्या करना है ना, 6 से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 नंबर्स तक मल्टीप्लाई करते जाओ। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 अपन में, तो इसका मतलब 4 को भी 4 डिसेंडिंग करते जाना है, 4 3 2 1। तो यहाँ पर भी वही बात है, 10C4, जो जितने नंबर यहाँ पर दे रखा होगा R, उतने डिसेंडिंग करते जाना है। 10 × 9 8 × 7, ये आपका 4 × 3 × 2 × 1। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, ये 4 4 ये सब कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 15/210 फर्स्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड, P x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 मीन्स क्या है, हो सकता है जो 4 बल्ब आपने पिक किया है उसमें से एक डिफेक्टिव हो और बाकी सारा सही हो। अच्छा, x हमारा डिफेक्टिव बात करता है, हो सकता है कि 1 डिफेक्टिव हो एंड बाकी जो रिमेनिंग 3 है, 3 आपका गुड वंस है। याद करो हमारा कॉम्बिनेशन थ्योरी है, नीचे आ जाएगा क्या है, 10C4, 10 में से 4 पिक किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितना है आपका, डिफेक्टिव आपका 4 है, तो 4 में से आपने 1 पिक किया एंड पर मल्टीप्लाई 3 गुड वंस। गुड वंस कितना है, 6C
और यहाँ पर कितना है 3 है। तो ये आपका है। तो इसको आपने जिस प्रोसेस में वो सिखाया आपको मल्टीप्लाई, इसको भी एक बार लिख लेता हूँ। तो कितना है 4, और तो ये 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 6, 3 डिसेंडिंग करो, 6 × 5 इंटू कितना है 3 अपन में 3 × 2 × 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना है 10, 9, 8, 7 और ये आपका 4, 3, 2 × 1। ये आपका कैलकुलेशन होने के बाद ये रिजल्ट आपको देता है 80/210। नेक्स्ट P x = 2 कैलकुलेशन करते जाना। मीन्स क्या है ना 2 डिफेक्टिव एंड 2 गुड वंस, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड बात पढ़ाता हूँ मैं। तो यहाँ पर कितना है 10C4, 10C4 और 2 डिफेक्टिव मतलब 4 में से 2 एंड 6 में से 2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करके आप तो कैलकुलेशन सिखा दिया करोगे, मैंने कैलकुलेटर्स में कैलकुलेट कर रखा हुआ हो। तो ये दिस विल 90/210। तो इस हिसाब से Px = 3 मीन्स क्या है, जिसमें से 3 डिफेक्टिव हो और 1 गुड वॉल हो, ठीक है। अच्छा 3 डिफेक्टिव हो और 1 गुड वॉल हो, तो ये कितना हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। नीचे आपका कितना है 10C4, ये आपका कितना हो जाएगा डिफेक्टिव, आपका डिफेक्टिव 4 है तो 4C3 एंड ये कितना है 6C1। ये आपका कैलकुलेशन होकर ये आपका बनते हैं 24/210। लास्ट आपका क्या है ना Px = 4, ठीक है। ये मीन्स क्या हो जाएगा ना चारों की चारों हो सकता है आपका गुड वॉल हो भी सकता है, ठीक है। यानी इसका मतलब नो डिफेक्टिव, इसका मतलब नो डिफेक्टिव लेकिन 4 की 4 आपका क्या है गुड वंस हो भी सकता है। तो इसका मतलब तो नो डिफेक्टिव को लिखने ज़रूरत नहीं पड़ा। तो 10C4 जो है ये आपने क्या है ना 4 की 4 जो आपका है कि डिफेक्टिव हो, 4 की 4 आपकी गुड वॉल्स हो। गुड कितना है 6 है, 6C4। ये आपका कैलकुलेशन होने के बाद 4 गुड वॉल्स, गुड आपका कितना है 6 है, ठीक है। सॉरी ये ऑल 4 आर डिफेक्टिव, ऑल, क्योंकि मैंने एक्स आपको ले रखा हो ना कि डिफेक्टिव के लिए है, तो डिफेक्टिव के लिए है चारों की चारों डिफेक्टिव है। तो ऑल 4 आर डिफेक्टिव, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा। तो डिफेक्टिव हमारा आपका 4 है, तो 4 में से 4 है, 4 में से 4 है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन होने के बाद ये पता लगता है कि 1/210, ओके। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो ड्रॉ करते हैं, और इन सब का सम आपको पता है, इन सब का सम मिलाकर अगर 1 है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है, अदरवाइज गलत है। ये आपका x, ये आपका px जब 0 था तो हमारा कितना था ना 15/210, जब 1 था वो था 80/210, जब 2 था वो आपका है 90/210, और जो 3 था वो है 1/210। एक बार सम करके देखो, ये 15, 90, 80 और 1, ये कितना हो जाएगा 6 और 10 8 18, सॉरी 6 9 8 17, अच्छा ये 4 रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पे हमें क्या निकाला था अभी, 3 पे था 24/210 और 4 पे हमारा 1/210। अच्छा
अब 24 सम करके देखो, और 24 और 1, अब ये कितना होने वाला, 5 4 9 1 10 और 1 3 11 12 और 21। ठीक है, तो इसका मतलब ये चेक करना है। देखो मेरा मिस्टेक हो रहा था, चेक करने के बाद हमें क्लियर हो गया। ठीक है, ओके।